हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अर्थ, मास, मून, या हम कह सकते हैं अर्थ, सन एंड मून के बारे में हम बात करेंगे कि हमारी पृथ्वी के बियॉन्ड क्या है, पृथ्वी के अंदर और क्या-क्या चीजें हैं, किस तरीके से पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर काट रही है, कैसे दिन रात हो रहा है, ये सारी की सारी बातें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ एंड जानते हैं इस चैप्टर के अंदर की बातें। So guys, in this chapter we are going to study Earth, Moon and the Sun. यानी कि हम बात करेंगे अर्थ, मून और सन की. So one morning in Kanyakumari, Tamil Nadu, 12-year-old Rashmika was eagerly cycling to school. She was excited. That was the day her science teacher had dedicated a class for the student to share and try to explain interesting observation. So एक दिन कन्याकुमारी में कहीं तमिलनाडु में 12 वर्षीय रश्मिका बहुत अपने स्कूल जा रही है और बहुत एक्साइटेड है दैट उसके जो साइंस के टीचरों ने डेडिकेट कर रखा है क्लास में कि आज वो कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस बताएंगे, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे. सो रश्मिका had been noticing that the coconut tree shadows were longer in the morning but the shorter in the afternoon on her way back. So while going to school, आप ये कह सकते हो कि जब वो स्कूल जा रही थी तो she noticed that जो कोकोनट ट्री की शेडो बन रही थी that were more longer in the morning then shorter in the afternoon. So जब वो वापस अपने घर जा रही थी तो उसने देखा जो नारियल का पेड़ है उसकी परछाई छोटी बन रही है दिन में एंड इन द मॉर्निंग टाइम इट इज लॉन्गर, ये सुबह के टाइम ये बड़ी है. She thought about it, उसने सोचा उसके बारे में, decided that the size of the shadow changes because of the sun moved across the sky during the day. So the size of the shadow changes because of the sun movement. Because sun move करता है, sun हमारा हमें पता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है in the day time and shadow's position changes according to the movement of the sun. But she has also remembered that earth moved along around the sun. उसने ये भी पढ़ा है कि जो अर्थ है that is also revolving around the sun. वो भी सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है. Now she was puzzled, वो सोच में पड़ गई कि ये है क्या. She wondered, does the sun move in the sky? तो उसके दिमाग में ये बात आई and she was wondering that क्या ये जो सन है ये भी स्काई में मूव करता है और the earth is moving also, सिर्फ अर्थ ही मूव करती है. So जब वो दिन में स्कूल जा रही थी उसने देखा कि पेड़ की कुछ परछाई छोटी सी बनी. ठीक है. So now the first we will tell the rotation of the earth, यानी कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, अर्थ अपनी जगह पर घूमती भी है. So you might have noticed that the sun rises in the east and sets in the west. So we all are aware of that situation that in every day the sun rises in the east and sets in the west. So have you wondered why? Have you ever thought about it? Let us try to understand why. Have you ever enjoyed riding a merry-go-round at a park at your school? So क्या कभी आप उस झूले पे बैठे हो जो मैरी गो राउंड होता है? So have you been seated on that? Let's go to the riding to the merry-go-round. चलिए एक काम करते हैं, merry-go-round को थोड़ा सा याद करते हैं. Sit on a merry-go-round facing towards the outer side of the. So when you are sitting on a merry-go-round, just be curious that your face should be outside the merry-go-round, not inside, not in between. It should be outside. Ask someone to turn the merry-go-round slowly in the anti-clockwise direction and try to say or try to rotate this merry-go-round in an anti-clockwise direction. While sitting, you will see that merry-go-round will be go around. Look around yourself. अपने आसपास देखो. Do the object around you appears to moving? तो क्या आपको आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करते हुए नजर आ रहे हैं? In which direction do they appear to move? और अगर आ रहे हैं तो वो कौन सी दिशा में मूव कर रहे हैं? While you turn in the anti-clockwise direction, the object appears to turn around in the opposite direction, that in clockwise direction. It means when you are moving in anti-clockwise direction, the object are moving in the opposite direction, that means in the clockwise direction. So अगर आप इधर की तरफ मूव कर रहे हो तो जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तुएं बाहर आपको दिख रही हैं, that will be moving opposite, यानी कि आपके वो उल्टा आपको दिखेंगी चलती हुई. And while you turn in the anti-clockwise direction, the object appears to turn around in the opposite direction, that is clockwise direction. Now fix your gaze at a particular tree or a building ahead of you while sitting on the merry-go-round, turning around in an anti-clockwise direction. Now अपनी नजर को ना फिक्स कर लो, fix your gaze. एक पर्टिकुलर ट्री पे या बिल्डिंग पे अपनी नजरें टिका दो एंड जब आप घूम रहे हो तो you'll see go round turning around in an anti-clockwise direction. In which direction do you find the tree turning around? So आप क्या देखेंगे, आपने अपनी नजर एक पेड़ पे अटका दी या बिल्डिंग में अटका दी और आप देखेंगे कि ये जो पेड़ है ये किस दिशा में जा रहा है. What is it your view all the time? क्या आपका व्यू हमेशा सेम रहेगा? The tree appears to turn around in the opposite direction, that is clockwise direction. The tree appears in your view
from left hand side to right hand side moves on the right hand side when you are view from merry-go-round turning in anti clockwise direction. तो आपको ये पेड़ कैसा दिखेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि आपको अपोजिट दिखेगा. सो इस ऑब्जर्वेशन से आपने क्या दिमाग लगाया? व्हाइल राइडिंग अ merry-go-round let us now think व्हेन वी व्यू फ्रॉम अर्थ, जब हम अर्थ से देख रहे हैं तो द सन अपीयर इन द ईस्ट, उस टाइम सन हमें ईस्ट में दिख रहा है. मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट एंड डिसअपीयर इन द वेस्ट. एंड धीरे 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 हमारी अर्थ यहाँ पर क्या कर रही है? उसके चारों तरफ चक्कर काट रही है ना. तो इससे क्या पता लगा? हमारी अर्थ जो जब चक्कर काट रही है तो वो ईस्ट से हमें वेस्ट की तरफ देखने को मिला, बिकॉज अर्थ इज मूविंग इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और डायरेक्शन. So does it indicate that sun is moving in the sky? क्या इससे ये पता लगता है कि जो सन है वो भी मूव कर रहा है? और might it be that the earth itself is turning around the sun and sun just appears to move? तो यह ऐसा लग रहा है कि अर्थ घूम रही है इसलिए हमें सन भी घूमता हुआ दिखा. The fact is that sun appears to be moving because we view it from the earth which is turning around itself. तो ये फैक्ट है. हमें सन क्यों लगता है मूव करता हुआ? आज सूर्य यहाँ है, धीरे धीरे वहां है, बिकॉज अर्थ मूव करती है. अर्थ हमारी क्या कर रही है? मूव. इन विच वे इज द अर्थ टर्निंग अराउंड इट सेल्फ? नाउ जैसे हमारा ये लट्टू घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, दिस बास्केटबॉल इज मूविंग इन अ फिंगर, है ना. तो अगर हम ये सारी की सारी चीजों को देखेंगे कि किस तरीके से एक स्पिनिंग बॉल है, किस तरीके से स्पिनिंग फैन है, स्पिनिंग टॉप यहाँ पर घूम रहा है, तो सेम टू सेम चीज हमारी अर्थ भी अपनी एक्सिस पे ही रोटेट करती है. दिस इज अ काइंड ऑफ अ रोटेटरी मोशन. ये एक रोटेटरी मोशन है कि जो ये अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, अपने अक्ष पर ये वस्तुएं घूम रही हैं. So it is similar, the earth is also spin rotates on its axis as shown in the figure. तो अर्थ भी हमारी क्या करती है? अपनी ही एक्सिस में घूमती है. So this is the axis of rotation, यानी कि अर्थ हमारी किस एक्सिस पे घूमती है उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. ठीक है. द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन अबाउट 24 आवर. तो एक पूरा चक्कर जो है अर्थ 24 आवर्स में लगाती है, 24 घंटे में लगाती है. सो व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ द नॉर्थ पोल द अर्थ इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो अर्थ हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है. सो इसी से चक्कर से हमें यह पता लगता है कि जो हमारा सन है दैट इज ऑल्सो मूविंग बिकॉज वी आर सीइंग फ्रॉम अर्थ. चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे. तो हमारी अर्थ भी क्या करती है? रोटेट करती है. तो यहाँ पे है यूज अ ग्लोब टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड प्लेस अ स्मॉल स्टिकर टू मार्क योर लोकेशन. आपने क्या किया? एक ग्लोब लिया और ग्लोब में एक छोटा सा आपने अपनी लोकेशन को मार्क करने के लिए एक हल्का सा स्टिकर लगा दिया. While viewing from the above north pole, जैसे आप इसे ऊपर से देखेंगे, slowly rotate the globe on the axis in anti-clockwise direction. हल्का सा घड़ी के विपरीत दिशा में इसको घुमाना. ऑब्जर्व करना how your location turns around and finally come back to its original position completing one rotation. तो ऑब्जर्व करना जब ये घूम के पूरा ये वापस आएगा, है ना, जब ये पूरा का पूरा फाइनली अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगा. सो इसको हम रोटेशन कहते हैं. इसी जगह पर अपनी ही मतलब अक्ष पे अर्थ का घूमना है, रोटेशन है. तो रोटेशन एक मोशन है जिसमें क्या होता है? जितने भी पार्ट होते हैं सर्कल के अराउंड एन इमेजिनरी लाइन दैट कैन पास थ्रू इट, तो वो सारे के सारे लाइन से पास हो जाएंगे. दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो जितने भी सर्कल अगर मैं यहाँ पे बनाऊं वो सारे के सारे इस लाइन से पास होने चाहिए. इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जिस अक्ष पे या जिस पॉइंट पर, है ना, जिस पॉइंट पे ये घूम रहा है वहां से हमने एक लाइन खींची, तो जो लाइन हम खींच रहे हैं जहाँ पे रोटेट कर रहा है दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. चलिए नोट करते हैं फटाफट.
So let us now further explore to understand how day and night occur on the earth due to its rotation. तो now अब बात करते हैं कि कैसे दिन और रात होती है अर्थ में. ठीक है, तो यूज अ टॉर्च टू रिप्रेजेंट द सन. एक टॉर्च को हम बताएंगे जिसको हम सन बोलेंगे कि ये सन है. गो टू रिलेटिवली डार्क रूम टू कैरी आउट द फर्दर स्टेप्स ऑफ दिस एक्टिविटी. और एक अंधेरे कमरे में जाके हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटीज को करेंगे. नाउ शाइन लाइट फ्रॉम द टॉर्च प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस. मान लो 1.5 मीटर दूर आपने क्या किया, टॉर्च को जला दिया. ऑन द ग्लोब एज शोन इन द फिगर. तो हम इस पे क्या करेंगे, ग्लोब के ऊपर जैसे हमने यहाँ पर टॉर्च को 1.5 मीटर की दूरी से इस ग्लोब के ऊपर चमकाया. डू यू नोटिस हाउ हाफ ऑफ द ग्लोब रिसीव द लाइट फ्रॉम द टॉर्च. आप देखेंगे कि सिर्फ हाफ ही ग्लोब को लाइट मिल रही है, बाकी ग्लोब को लाइट नहीं मिल रही है. बाय द अदर हाफ स्टेज डार्क, वो डार्क अंधेरे में है. इट्स अ डे टाइम इन द हाफ ऑफ द ग्लोब विच रिसीव लाइट. तो ये टाइम है हाफ ऑफ द ग्लोब, यानी कि सिर्फ आधा ही ग्लोब को लाइट मिल रही है. यानी कि यहाँ पर लाइट मिल रही है तो यहाँ पे उजाला होगा, उजाला होगा तो यहाँ पे धूप होगी, धूप होगी तो यानी कि यहाँ सुबह हो रही है. और जितने में अंधेरा है वहां पे रात हो रही है ना. तो इन इंडिया सनराइज फर्स्ट अगर इन ईस्टर्न पार्ट एंड देन इन अदर पार्ट. तो सबसे पहले इंडिया में भी ईस्टर्न पार्ट में धूप आती है, देन धीरे 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 और पार्ट पूरी पार्ट्स में यानी कि बाकी पूरे इंडिया में धूप जाती है. While looking at the eastern part of India on the globe, rotate the globe in one direction and then in opposite direction. तो इस ग्लोब को थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में घुमाओ. What is the direction of रोटेशन व्हेन लाइट फॉल ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. तो आप देखेंगे कि डायरेक्शन क्या है रोटेशन की जब लाइट जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे पहुंच रही है. तो आप देखेंगे ईस्टर्न पार्ट में अगर धूप पहुंचानी है सबसे पहले तो इंडिया का ग्लोब जो है उसको हमें वेस्ट टू ईस्ट मूव कराना पड़ेगा, इस तरीके से रोटेट कराना पड़ेगा है ना, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ साउथ एक्सिस. तो नाउ व्हाइल रोटेटिंग द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑब्जर्व योर लोकेशन ऑन द अर्थ. तो जैसे आप रोटेट कर रहे हो ग्लोब को वेस्ट से ईस्ट में, आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करें अपनी लोकेशन अर्थ की. तो डज इट गो थ्रू अ साइकिल ऑफ डे एंड नाइट. तो क्या आप यहाँ पे डे और नाइट की साइकिल देखेंगे. तो सनराइज जो होती है हमारी लोकेशन में वो इसी तरीके से होती है कि जो सनलाइट है वो हमें क्या करती है, सनलाइट पड़ती है एंड देन धीरे धीरे सनसेट होता है तो डार्कनेस में आ जाता है, यानी कि धूप पड़ती है और धीरे धीरे अंधेरा होने लग जाता है इस तरीके से. सो द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट, यानी कि जो अर्थ घूम रही है अपनी एक्सिस में उसके कारण डे और नाइट सुबह शाम होते हैं इस तरीके से. तो द साइड फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे टाइम. तो जो भी सूरज के पास साइड है उसको धूप मिलती है, वाइल अदर साइड जो दूसरी साइड है उसको एक्सपीरियंस होती है नाइट. उसको क्या मिलती है, नाइट, यानी कि वहां अंधेरा होता है, वहां पे रात होती है. तो जैसे अभी हमारे यहाँ पे धूप हो रही है, अंधेरे दिन हो रहा है, कुछ ऐसे देश होंगे जहाँ पे इस टाइम रात हो रही होगी. ठीक है, तो ये बात याद रखना. चलिए नोट करते हैं फटाफट से. तो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात होता है, किस तरीके से रोटेशन के कारण डे टाइम या मैं कह सकता हूँ डे और नाइट होता है. नेक्स्ट क्लास में आगे और भी चर्चा करेंगे इन्हीं बातों पर. आज की क्लास में इतना ही. आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.